Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Timeline and Sources of History. So before starting the chapter, you have to know some important terms like circa. What is circa? That is a Latin word often used to describe various dates, often birth and death dates that are uncertain. History, the study of human past, right? Fossils क्या होते हैं? That are the impressions of footprints or parts of plants or animals that are found preserved within the layer of soil or rocks. Era, that is a distinct period of time, right? Auspicious, that is a favorable or bringing luck, for instance an auspicious beginning. And century, that is a period of 100 years. Millennium, that is a period of 1000 years. सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट? हिस्टोरियन आर द पर्सन हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट. जेनेटिक्स, that is a branch of biology that studies how in plants, animals or humans certain features and characteristics get passed down from one generation to next, that is genetics. After life, a life जो death के बाद होती है, okay? Welfare, that is health, prosperity and well-being. And hamlet, that is a small settlement or small village को हम hamlet कहते हैं, okay? So now let's start the chapter. How do we learn about the past? Past के बारे में कैसे हमें पता लगता है? Our only home, the earth, has a very long history of which we humans occupy only a very small part, and the most recent one as is depicted in the given timeline. So बच्चे, हिस्ट्री क्या होती है? जो हमसे पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं वो क्या है? हिस्ट्री है, पास्ट है हमारा, ओके? सो देयर आर 8 प्लैनेट. यहाँ पर हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं. अगर अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है, अगर हम इस पर देखेंगे कि कैसे लाइफ शुरू हुई थी, तो सबसे पहले अर्थ पर क्या आया था? दिस इज द अर्थ, ओके? द फर्स्ट सेल, उसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर बना, ठीक है? उसके बाद कैसे बैक्टीरिया आया, कैसे कॉरल्स आए, कैसे मैराइन लाइफ शुरू हुई, ओके? कैसे वाइल्ड लाइफ शुरू हुई, राइट? तो इस तरीके से लास्ट में जो है दैट इज ह्यूमन बीइंग, ओके? सो दिस इज द टाइम लाइन ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द एनवायरमेंट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि कैसे लाइफ की बिगिनिंग हुई. फाइन. नाउ हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. सो व्हाट इज हिस्ट्री? ये हम पढ़ चुके हैं. हिस्ट्री इज द study of the past, and the word history comes from the Latin word historia and the Greek historikos, which means a true story of past events, and it is an account of human life from the beginning to the present day. कैसे लाइफ की शुरुआत हुई थी, ह्यूमन लाइफ ने कहाँ से शुरू किया था, अब क्या है, ये सारा जो हो चुका है that is history, and that is also the true stories, right? And it is a record of people, places and events of the past in a chronological order. Chronological, जो पहले क्या चीज़ हुई थी उसके बाद क्या हुई, तो एक specific order में वो mention किया गया है. Now बच्चे, why we study history? क्यों पढ़नी जरूरी है, क्यों हमें history को पढ़ना चाहिए? So some reasons for the study of history are, first is it provides us knowledge of the gradual process of growth and evolution of human civilization and culture, कि कैसे human civilization शुरू हुई थी, कैसे हमारा culture develop हुआ था, कैसे धीरे धीरे अब जो हम हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये जानने के लिए history को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. Second, it informs us about the origin, development and evolution of society of different communities practicing different religions, speaking different languages and observing different customs and traditions. कैसे different religion की शुरुआत हुई, कैसे tradition शुरू हुई, कैसे languages शुरू हुई, कैसे हमारी language कैसे बनी, ये सारी चीज़ों का आंसर हमें history से ही मिल सकता है. And the third one is it helps us to know our past. This way we can learn about ancestors, their struggles and their achievements. हमारे past के बारे में जानने के लिए भी history बहुत ज़रूरी है, कि हमारे ancestors कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, क्या क्या उन्होंने struggle किया है life में, क्या उन्होंने achieve किया, वो जानने के लिए history पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है?
नेक्स्ट है बच्चे टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। टाइम फ्रेम जो है वो हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री दैट इज नोन एज प्री हिस्ट्री, ठीक है, जिसके हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जो कि ऑरली एक से एक जनरेशन पास आउट हुए हैं। आवर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड इज बेस्ड एंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी, या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जो हमें पता लगता है दैट इज प्री हिस्ट्री। ओके, उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री जिसके इज द रिकॉर्डेड अकाउंट, जिसके हमारे पास रिटर्न अकाउंट्स हैं। एज मैन ने प्रोग्रेस की, उन्हें लिखना आया तो उन्होंने हिस्ट्री को लिखना शुरू कर दिया। अब हिस्ट्री को हमने 3 ब्रॉड पीरियड में डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। फाइन, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न. So each of these period covers several centuries. The length of a period differ from one part of the world to another. Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secrets left beneath the earth's surface and help us to learn about its past and also our past. These people are geologists, paleontologists, anthropologists and archaeologists. अब जो ये हिस्ट्री की स्टडी करते हैं लोग कौन होते हैं? जियोलॉजिस्ट, राइट, प्लेंटोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन बीइंग मैनकाइंड की स्टडी करता है, आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज या फिर जो स्ट्रक्चर है पास्ट उनकी स्टडी करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लोग होते हैं जो हिस्ट्री की स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री. कैसे हम टाइम को हिस्ट्री में मेजर करते हैं? सो टाइम को हम मेजर कैसे करते हैं? हिस्ट्री डील विद द स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट, राइट. सो हिस्टोरियंस ने इंट्रोड्यूस किया एक बर्थ ऑफ जीसस का कंसेप्ट, यानी क्राइस्ट के बर्थ का जो टाइम है वो हमने 0 किया. बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले जो चीज़ें हो चुकी थी हम उसको बीसी में लिखा, और उनके जन्म के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसको हमने एडी में मेंशन किया, दैट इज एनो डोमिनी. ओके, so sometimes BCE that is before common era instead of BC and CE that is common era is used instead of AD to mark the dates in history. Similarly CE and AD that have the same value, 2000 CE and 2000 AD. BC and BCE also have the same value, right? So next is here is the timeline of some main events since 3 lakh BCE. और कैसे टाइमलाइन जो है वो बताई गई है. सो टाइमलाइन आप देखो, लाइक this is the Ice Age, 14,000 BC, 40,000 BC, first example of rock art in the world, and this is the 12,000 BC, 10,000 BC. फाइन, तो इस तरीके से कैसे अशोका है, कैसे बर्थ हुआ बुद्धा का, तो इस तरीके से हम हिस्ट्री की 1 by 1 जो है वो स्टडी करते हैं. नाउ अ टाइमलाइन, टाइमलाइन जो है वो एक कन्वीनियंट टूल है, लाइक इजी टूल है जो इम्पॉर्टेंट इवेंट को मार्क करने में हमारी हेल्प करता है, जैसे कि बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और द बिगिनिंग ऑफ अ रूरल रीजन, एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कवरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड. सो इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट विद सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, एंड द टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट टेक प्लेस. कैसे? For example, even without looking at dates, we can see that Gautam Buddha was born before Jesus Christ. अब देखो गौतम बुद्ध का जो बर्थ है तो वो हमें बिफोर, हमें डेट देखने की जरूरत ही नहीं है, ये जीसस का बर्थ है, राइट. और इससे पहले गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था. तो टाइमलाइन देख के हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा इवेंट जो है वो कब हुआ था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के सोर्सेज, जैसे डिफरेंट पीपल होते हैं हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, वैसे ही बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास होते हैं हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए. ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होते हैं? जैसे कि ओरल सोर्सेज. ओरल सोर्सेज में क्या हो गए? जनरेशन टू जनरेशन जो स्टोरी सुनाई जाती हैं ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू, राइट. फोक आर्ट है ना, कहानियाँ, फोक टेल्स हैं वो सुनाई जाती हैं. उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सक्वेशन, आर्टिस्टिक सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, इंडियन लिटरेचर, इन सब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है. नाउ
historical sources enable us to reconstruct past history. अब इन sources से हम करते क्या हैं? इन sources से एक story बनती है, ठीक है, true event, fact find out होते हैं और उससे हम अपने history को, हमने अपने past को reconstruct कर सकते हैं. There are two major types of historical sources. और major की अगर हम बात करें तो दो type के sources होते हैं, archaeological and literary sources. So archaeological sources जैसे ये क्या है? Archaeological remains, कोई भी building का material है, ठीक है, ये archaeological remain में आते हैं. So archaeology क्या होता है? It is a study of the remains of the past. Archaeological remains are the object, building, structure जो डग करते हैं हम, और archaeologist जो होते हैं वो उनकी स्टडी करते हैं और उनके बारे में हमें बताते हैं. जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें कैसे पता लगा? जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं वहीं हमें पता लगा कि यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदारो दो सिटी हुआ करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से फ्लोरिश हुई थी, राइट. उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल में और क्या क्या. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पहले हम बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में. मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं बच्चे? जो बिल्डिंग्स होती हैं, राइट, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं उनके जो र्यून्स हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, उनकी स्टडी करके हम जो लोगों की लाइफ के बारे में पता लगाते हैं. सो द एक्सक्वेशन साइट एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, हस्तिनापुर एटसेट्रा गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ द लाइफ इन द पास्ट, एंड द रिमेन्स ऑफ नालंदा एंड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, द Grand Stupa of Sanchi, Ashoka Pillar and the Rath at Mahabalipuram etc. They reveal about our glorious past to us. उसके बाद नेक्स्ट है एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जैसे जो रॉक, स्टोन, कॉइन, मेटल प्लेट, क्ले, टैबलेट, इन पर जो चीज़ें लिखी होती हैं, एनग्रेव की होती हैं, उनको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस. और एडिक्ट क्या होता है? दैट इज अ रॉयल कमांड एनग्रेव्ड ऑन स्टोन. जो राजा जो सब लोगों को मैसेज देने के लिए पिलर्स पर एनग्रेव करा देते थे, दैट इज अ एडिक्ट. सेवरल एडिक्ट्स ऑफ द Emperor Ashoka provide us a lot of information about his achievements and the socio-economic life of the people. Similarly, the Hathi Gumpha inscriptions of Kharvela and the Junagadh rock inscriptions of Rudraman provide the authentic information of those times. Okay, तो इस तरीके से हमें काफ़ी कुछ पता लगता है. उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे कॉइन्स. कॉइन्स में न्यूमिस्मैटिक्स होते हैं, दैट इज अ स्टडी ऑफ कॉइन्स. ओके, इट थ्रोज अ ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन एंशियंट टाइम. कॉइन्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के बने होते थे, ठीक है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम का जो किंगडम था वो कितना प्रॉस्पेरस था, या फिर उस टाइम पर आर्ट क्या थी, उस टाइम कल्चर क्या था, सोसाइटी कैसी थी, कौन सा किंग था, तो वो कॉइन से हम पता लगा सकते हैं. द कॉइन्स ऑफ कुशाना एंड गुप्ता रूलर प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द religion and administration of those monarch. Okay, तो इस तरीके से कॉइन से हम काफ़ी कुछ पता लगाते हैं. यहाँ पर बच्चे दो टर्म्स हैं, एपिग्राफी दैट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड philology that is a study of languages in which documents are preserved. Now आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने अपने यूजेस के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें बनाई थी, दैट इज आर्टिफैक्ट्स. सो दीज आर द वर्क ऑफ आर्ट इंक्लूड स्कल्पचर, स्टैचूज एंड पेंटिंग्स विच हेल्प अस इन रिकंस्ट्रक्टिंग द कल्चरल लाइफ ऑफ द एंशिएंट पीपल हु मेड दैम. The specimen found in Takshila belonging to the period of Kanishka throw light on the Gandhara art and religious belief of the Kushan kings, and the images and paintings of the Ellora caves reveal the executions of contemporary sculpture of the Gupta period, and the painting of frescoes at Ajanta, Ellora and other places reveal the contemporary society, economy and art of that period. So here's an interesting fact. As you know, many Indian calendars own the position of the sun and the moon to define the month of the year. So there is a Panchang, that is a
बुक ऑफ टेबल्स विच लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ। पंचांग क्या होता है? जिसमें एक बुक होती है, टेबल्स बने होते हैं जिसमें हर एक दिन को, मंथ के हर एक दिन को डिस्क्राइब किया होता है एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रिसाइज द इवेंट्स लाइक सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स एंड द टाइम फॉर द सनराइज एंड द सनसेट। सो इस तरीके से उस पंचांग में पूरी डिटेल दी होती है। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। अब ये हमने पढ़े आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मीन्स जो आपके पास रिटन फॉर्म में हैं। थाउजेंड ऑफ ईयर एगो व्हेन देयर वाज नो पेपर टू राइट ऑन, आवर एंसेस्टर्स रोट ऑन ड्राइड भोजपत्र। ठीक है, बड़े बड़े जो लीफ होती थी, पत्तियां होती थी, उसके ऊपर लिखते थे, या फिर द बार्क ऑफ ट्री, या फिर कॉपर प्लेट एटसेट्रा। अर्लियर द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग टू वॉज अननोन, प्रिंटिंग भी नहीं करनी आती थी। सो हमारे एंसेस्टर्स रोट देयर अकाउंट्स बाय हैंड एंड सच हैंड रिटन अकाउंट्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो प्रिंटिंग नहीं होती थी, टाइप नहीं कर सकते थे उस टाइम पर, तो हैंड रिटन अकाउंट होते थे। हैंड रिटन अकाउंट्स को क्या बोला है? मैन्यूस्क्रिप्ट। सच लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, उससे पहले हम इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। द ग्रीक स्कॉलर जिसका नाम था हेरोडोटस, who lived in 5th century BC, is known as the father of history. Fine. Now लेट्स स्टार्ट रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर क्या होते हैं बच्चे? जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। सो द रिलीजियस और सेक्रेड लिटरेचर ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द ब्राह्मणिकल लिटरेचर, वेदास एंड स्मृतिज, उपनिषद, पुराण्स, अरंकास एटसेट्रा, बुद्धिस्ट एंड जैन सेक्रेड टेक्स्ट एंड एपिक्स। सो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वर्क। ऋग्वेद जो है दैट इज द ओल्डेस्ट वर्क ऑफ ऑल द ब्राह्मणिकल लिटरेचर। इट एडुकेट द religious, social and economic life of the early Aryans, and the later Vedas and Samhita provide rich information about the life of post-Vedic Aryan। जो वेदास हैं उसके आर्यन के बारे में, जो आर्यंस थे, फर्स्ट इंडियन सिटीजन्स थे, उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा वेदास जो हैं, संहिता जो हैं, उसके बाद की लाइफ पोस्ट वैदिक आर्यन के बारे में लिखा हुआ है, यानी वेदास के बाद ये कंपोज किए गए। द स्मृतिज कंपोज मेनली during the Gupta period tell about the social and religious life of the people of that age. Ramayana और Mahabharata, these are the most important epics. They are written by Maharshi Valmiki and Maharshi Vedvyas respectively. Both have great religious importance for the Hindus. और ये हमारे क्या हैं? ये हमारे epics हैं, रामायण और महाभारत, right? Among Buddhist literature, the Tripitaka or the oldest, they contain the religious views of the Buddha. अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर की हम बात करें तो उसमें ट्राइपिटिका जो है, ट्राइपिटाका, ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, और इसमें काफ़ी बुद्धिज़्म से रिलेटेड, बुद्धा से रिलेटेड जो है, बुद्धिस्ट फिलोसफी जो है उसके बारे में लिखा गया है। द जटाकास आर द स्टोरीज ऑफ द लाइव्स ऑफ द बुद्धा इन अर्ली बर्थ, एंड द Mahavamsa and the Diplavamsa of Sri Lanka also throw a great deal of light on the ancient history of India. And the Milind Paho present a philosophical dialogue between Menander and the Greek king and the Nagasen, a Buddhist monk. And the Angas of the Jains tells about the contemporary society and the political and economic conditions of those days. Now next is secular literature. So secular literature that include works other than the religious. The grammatical works of Panini like Ashtadhyay and Mahabhashya contain valuable historical information of that period. उसके अलावा मुद्रा राक्षस of Vishakha Datta and Katha Sarita Sagar by Somved and Somdeva and Bihar Katha Manjari by Kashmendra tell of some events of Mauryan period. So Kautilya's Arthashastra is a treatise on political science and statecraft written during the Mauryan period, and Nitisara by Kamandaka informs about the political system of the Guptas. So Patanjali's Mahabhasya and Kalidas Malvikanmitra narrate the history of the Sunga dynasty, and Sudraka's Mrityundrika and Dandin Disa Kumar
Charita unveil the contemporary societies. So among the biographies, Harshcharita by Ban Bhatt narrates the achievements of Harshvardhan, and Vikramadeva Charita by Bihan describes the achievements of Vikramaditya, while Harsh plays, for example, Nagananda and Ratnavali and Priyadarshiniku throw a good deal of light on the condition in India during his rule. तो बच्चे ये क्या है? These are the secular literature, यानी रिलीजन के ऊपर जो लिटरेचर लिखे गए थे, जो कोर्ट पोइट होते थे किंग के, वो इन चीज़ों को लिखते थे. इसके अलावा कुछ बायोग्राफीज भी हैं. बायोग्राफी क्या होती है? जो उनकी लाइफ के बारे में, किंग की लाइफ के बारे में जो चीज़ें बताती हैं. तो बहुत सारे कोर्ट पोइट ने बायोग्राफी भी लिखी हैं, जैसे कि हर्षचरिता जो किंग हर्षवर्धन के बारे में, लाइफ उनकी अचीवमेंट के बारे में बताई गई हैं. तो इस तरीके से हमें सेक्युलर लिटरेचर के बारे में पता लगता है. नेक्स्ट है फॉरेनर्स अकाउंट्स. अब फॉरेनर्स अकाउंट, फॉरेनर्स कौन थे? जो इंडिया में पढ़ाई के लिए या फिर इंडिया को विजिट करने के लिए आते थे और यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो कुछ टेक्स्ट लिखते थे और रिटर्न इंफॉर्मेशन लिखते थे. उनको कहा जाता है ट्रैवलर अकाउंट. सो हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन मेंशन्ड अबाउट इंडिया इन हिज हिस्ट्री, बट द मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर बाय फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया. मेगास्थीन द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रोट इंडिका. मेगास्थीन जिसने एक बुक लिखी है इंडिका, राइट, जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर थे. सो इंडिका में इन्होंने क्या लिखा है? इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है. एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया बाय पोटैलमी अबाउट 130 AD एंड द पेरिप्लस ऑफ द इरान सी बाय एन unknown Greek author are important works on India. Chinese travel जैसे कि फाजीन एंड Zhongzhang and Yizing have recorded valuable accounts of contemporary India. Muslim scholar Al-Biruni, that is 1030 AD, gave a vivid account of the literature, religion and social institutions of India in his famous book Taqul-e-Hind. तहकीक ए हिंद. ठीक है, तो ये मुस्लिम जो ट्रैवलर थे, इन्होंने तहकीक ए हिंद में काफ़ी कुछ इंडिया के बारे में लिखा है. तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रैवलर आए जो इंडिया में विजिट करने आए. एंड दिस इज़ द स्टैचू ऑफ मार्को पोलो इन हैंगजो, चाइना, जो इंडिया में आए थे और इंडिया के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग अकाउंट जो है मार्को पोलो ने, इन्होंने क्रिएट किए थे. इन एडिशन, इन द लास्ट 50 years or so, scientific studies have been contributing more and more to the reconstructions of the past. For example, studies of ancient climate, chemical studies of excavated materials and studies of the genetics of ancient people have provided fresh insights which add to the usual sources. And when historians study recent history, usually the last 2 or 3 centuries, another source is newspaper. For the last few decades, electronic media, television, the internet, etc. is also consulted. तो बच्चे पहले लिटरेरी सोर्सेज इस तरीके से होते थे, ठीक है, जो हमारी कंट्री के लोग लिखते थे. उसके अलावा जो फॉरेनर थे उनके अकाउंट से हमें पता लगता है, जो ट्रैवलर थे उनके अकाउंट से पता लगता है. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर में चीज़ें छपने लगी. न्यूज़पेपर के बाद अब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे टीवी और इंटरनेट. वहाँ से हम सारे इंफॉर्मेशंस जो है वो ले सकते हैं. Now next is the beginning of human history. So modern humans, that are Homo sapiens, appeared on the earth around 3 lakh years ago. Though it appears to be a very long time, it is only a tiny fraction of the earth history. Let us have a glimpse of early human history. तो early human history के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, right? So primitive man यानी कि जो early man थे, पहले के man थे, they evolved from apes. Gradually he learned to walk on 2 legs and perform various types of work with his arm. ठीक है, एप्स की प्रजाति से थे ये, ओके, प्रिमिटिव मैन, और अपने 2 लेग से मूव करते थे और 2 हैंड से वो अपने आर्म्स की तरह यूज करते थे, बाकी का काम करते थे. ही डेवलप्ड एंड मेड वेरियस टूल्स एंड वेपन्स टू यूज अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड हॉस्टाइल एनवायरमेंट. As his mental faculties were superior, he used them to improve his living conditions. अब human being, एक अकेला ऐसा living thing
बीइंग है, ठीक है, लिविंग बीइंग है जिसमें दिमाग होता है, राइट। तो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करके उन्होंने सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और अब हमारी लाइफ देखो और पहले अर्ली मैन की लाइफ देखो, कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली स्लोली चेंजेस आते गए। इट इज़ बिलीव दैट मैन लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ ऑफ अ फूड गैदरर एंड हंटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा माना जाता है पहले लोग क्या करते थे, नोमैडिक लाइफ, यानी नोमैडिक, नोमैड्स, जो खाने की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर मूव करते रहते थे। और फूड गैदरर भी उन्हें कहा जाता था, जो क्या करते थे, हंटिंग करते थे और फूड गैदर करते थे। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज ही डिस्कवर्ड फायर, फिर उन्होंने फायर की डिस्कवरी की। ही बिगेन टू सेटल डाउन इन कम्युनिटीज, फिर धीरे धीरे फार्मिंग करनी उन्हें आई, फिर कम्युनिटीज में रहने लगे। एंड मैनी न्यू डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स। एंड दिस इज द पेंटिंग शोन मेड बाय अर्ली ह्यूमन बीइंग। तो इसमें क्या करते हैं, वो डेली वेरियस के जो डेली उनके जो सीन होते थे उसी को डिपिक्ट किया है। सो लुक एट सम एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग इन अ रॉक शेल्टर, ट्राई एंड गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच। वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। सो अर्ली मैन जो होते थे, दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो और प्रोड्यूस फूड। अब उन्हें क्या था, अब उन्हें फायर की डिस्कवरी कर ली है, राइट, टूल्स बना लिए हैं। उसके बाद अब उन्हें फूड ग्रो करना या फूड बनाना, प्रोड्यूस करना नहीं आता था। So he wandered around in groups to search for food, shelter and safety. A group generally consisted of some men, women and children who stayed together for their safety and survival. और ज़्यादातर ये लोग ग्रुप में ही मूव करते थे। They were mainly hunters and gatherers, जो क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे और फ्रूट और रूट्स, नट्स, लीव्स, सीड्स, जो खाने की चीज़ें होती थी उनको गैदर करते थे। सो दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर, फाइन। सो द अर्ली ह्यूमन्स ऑल्सो हैड सर्टेन beliefs about natural elements and possibly also some notion of afterlife। शायद वो आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद भी लाइफ होती है उसमें बिलीव करते थे। और कुछ नेचुरल जो मैजिक होता है, नेचुरल एलिमेंट होते हैं, एयर, सन, उसमें भी उनका एक बिलीफ था, विश्वास था। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द अर्लीस्ट सोसाइटी। और यहाँ से अर्लीस्ट सोसाइटी जो है इस तरीके से शुरू हुई थी। These groups lived in temporary camps, rock shelters or caves and communicated with each other using languages. They discovered fire and started making objects like improved stone axes and blades and arrowheads and other tools that made their life easier. And these weapons and tools served many purposes, include cutting, killing animals and removing their skin, digging earth, etc. Aspect of their life can be seen in rock paintings found in hundreds of caves all over the world, somehow सिंपल फिगर और अ फ्यू। तो बच्चे जो पेंटिंग है, अर्ली केव्स में आप घूमने जाते हो तो वहाँ आप देखोगे अर्ली ह्यूमन बीइंग कैसे पेंटिंग बनाते थे। तो वो क्या अपना क्या डिपिक्ट करते थे, जो उनके डेली के सीन थे, उनका जो लाइफ स्टाइल था, उसी को वो रॉक पेंटिंग में डिपिक्ट करते थे। So symbols, while others are more detailed and represent scenes with animals or human। कुछ में सिंबल यूज करके वो रॉक में फ्री टाइम में रॉक केव्स जो होती थी उसमें वो पेंटिंग करते थे, कुछ में सिंबल का यूज करके करते थे और कुछ में डेली के जो सीन होते थे उसको डिटेल में डिपिक्ट करते थे। एज टाइम पास्ड अर्ली ह्यूमन लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स जैसे स्टोन और शेल बीड्स, पेंडेट्स मेड ऑफ एनिमल टेथ एंड समटाइम्स एक्सचेंज दैम विद अदर ग्रुप। और फिर धीरे धीरे उन्होंने ऑर्नामेंट बनाने सीखे, फिर दूसरे ग्रुप के साथ वो चीज़ें एक्सचेंज करने लगे, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, राइट। उसके बाद अब उन्हें अभी तक फूड ग्रो करना नहीं आया है, तो फर्स्ट क्रॉप कैसे ग्रो हुई। With the passage of time, the Earth's climate has gone through many changes. At times, it was very cold and much of the Earth's surface was covered with ice. बहुत पहले जो अर्थ थी वो बहुत ही ठंडी होती थी, बहुत ठंडा क्लाइमेट होता था और ज़्यादातर जो अर्थ का सरफेस था वो आइस के साथ कवर्ड था। दिस इज कोल्ड एंड आइस एज, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, आइस एज, राइट। नाउ लेटर व्हेन द क्लाइमेट बिकम वार्म, धीरे धीरे क्लाइमेट वार्म होता गया, आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होती गई और वाटर से रिवर फ्लो होने लगी और इस तरीके से सीज और ओशियन जो है वो फिल होने लगे। आइस एज एंडेड अराउंड 12,000 ईयर एगो, और इस तरीके से आइस एज जो है वो 12,000 ईयर एगो खत्म हो चुकी थी। नाउ एज लिविंग कंडीशन इम्प्रूव्ड, अब लोग रहने
लगे थे, ठीक है, लिविंग कंडीशन इंप्रूव होने लगी थी, ह्यूमन बिगेन टू सेटल डाउन, अब वो एक जगह पर रहने लगे। द चेंज फ्रॉम फूड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड वॉज नॉट सडन बट अ स्लो प्रोसेस। मैन ने धीरे धीरे हार्वेस्टिंग सीखी, उसे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे ये ग्रो होगा। शायद एक दिन किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ एक्स्ट्रा ग्रेन जो है वो नीचे गिर गए होंगे मॉइस्ट सॉइल में, और धीरे धीरे वो स्प्राउट हो गए और वहाँ पर प्लेंटीफुल ग्रेन जो है वो खड़ा हो गया। इस तरीके से बच्चे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। इट नीडेड अ सेटल्ड वे ऑफ लाइफ सो एज टू वॉच ओवर ग्रोइंग प्लांट्स। सो अब ग्रोइंग प्लांट को देखने के लिए वहाँ पर उन्हें रहना पड़ा और इस तरीके से फर्स्ट सेटलमेंट भी शुरू हुई। मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, अब क्या बन गए हैं, फूड गैदरर से वो क्या बन गए हैं, फूड प्रोड्यूसर, यानी अपने ही घर के आसपास वो एग्रीकल्चर करने लगे थे। एग्रीकल्चर ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अब उन्हें फूड प्रोड्यूस करना आ गया था तो इधर उधर उन्हें मूव करने की जरूरत नहीं थी, उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी चेंज हो गई थी, फूड हैबिट्स चेंज हो गई थी। धीरे धीरे फिर उन्होंने क्लॉथ बनाना सीखा फ्रॉम कॉटन को भी, क्योंकि वो कल्टिवेट करने लगे थे। सो मैन ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विच वर यूजफुल टू हिम। अब धीरे धीरे जब उन्होंने एक ही जगह पर रहने की सोच ली है तो वो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने लगे थे, जैसे कि डॉग सिक्योरिटी के लिए, कैटल्स मिल्क और मीट के लिए, शीप और गोट जो है वो वूल के लिए और मिल्क के लिए, हॉर्स, बुल्स एंड कैमल जो है वो ड्रॉट पर्पसेस के लिए, यानी कि सामान ढोने के लिए। काउ डंग प्रोवाइडेड हिम मैन्योर, और जो काउ डंग होता था उसका वो खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में यूज करते थे। सो बच्चे एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, द गिवन सीन डिपिक्ट्स एन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, ठीक है, यानी इनको खेती बाड़ी आ गई है फ्रॉम अ फ्यू मिलेनियम एगो। सो आपको एक लिस्ट द मेन एक्टिविटीज यू कैन आइडेंटिफाई, आप में इसको क्या क्या दिख रहा है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, उस टाइम पर क्या क्या काम होता था, किस तरीके से वो करते थे, तो उस तरीके से आप एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। नाउ as human communities grew, so did their social complexity. Leaders और chieftains were responsible for the well-being of the people. अब धीरे धीरे जब लोग एक जगह पर रहना शुरू कर दिया तो communities बनने लगी, इतने सारे लोग हो गए थे कि उसमें किसी को लीडर या फिर chieftain बनाना पड़ा। अब वो रिस्पॉन्सिबल होता था, लीडर रिस्पॉन्सिबल होता था सबकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए। There was no sense of individual ownership. The lands were collectively sold एंड हार्वेस्टेड। कोई उस टाइम पर इंडिविजुअल ऑनरशिप नहीं थी कि ये लैंड मेरी है, ये लैंड मेरी है, सब लोग कलेक्टिवली जो है वो काम करते थे, इकट्ठा ही बीज को बोते थे, इकट्ठा ही हार्वेस्ट करते थे और इकट्ठा ही सब लोग शेयर करते थे। With the passage of time, small hamlets grew into large villages that exchanged goods. और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ छोटी छोटी सेटलमेंट जो हैं वो बड़े बड़े गांव में चेंज होना शुरू हो गया। अब लोग एक दूसरे के साथ सामान जो है वो एक्सचेंज करने लगे थे, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड टूल्स। स्लोली नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज वर एस्टैब्लिश्ड अमंग दोज विलेजेस एंड सम ऑफ देम ग्रू इनटू स्मॉल टाउन। अब धीरे धीरे दूसरी ट्राइब के साथ, दूसरी कम्युनिटीज के साथ भी चीज़ों को लेकर, बार्टर सिस्टम को लेकर, चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन शुरू हो गई। और अब उन्हें क्या चाहिए था, वेसल चाहिए था, कंटेनर चाहिए था फूड को स्टोर करने के लिए और कुक करने के लिए। सो दे मेड बास्केट्स ऑफ स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू स्टोर फ्रूट्स एंड ड्राई थिंग्स। लेटर दीज वर कॉटेड एंड लेयर्ड विद मड टू होल्ड लिक्विड्स। उसके बाद पोटर व्हील जो है दैट मेड मेकिंग ऑफ अर्थनवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर वेरी इजी। लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग बेक्ड पॉटरी ऑल्सो। अब पोटर व्हील से धीरे धीरे उन्होंने पॉटरी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, पॉट बनाने शुरू कर दिए, फिर उसको बेक करना भी शुरू कर दिया। द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ द टाइम वर फार बेटर देन द अर्लियर वंस। सो दे वर स्ट्रोंगर एंड शार्पर। और पहले कैसे होते थे, क्रूड स्टोन टूल्स होते थे। अब इस टाइम पर जो टूल और वेपन होते थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी स्ट्रोंग और शार्पर थे पहले से। अब उनको पॉलिश किया जाने लगा था ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। पॉलिश्ड स्टोन सेल्ट मेड ऑफ द ग्रेन स्टोन वॉज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ दिस एज एंड इट कुड बी यूज एन एक्स फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। जैसे कुल्हाड़ी होती है, एक्स की तरह इसको यूज़ किया जाता था और एज अ हो लैंड को टिल्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता था। इट वॉज ऑल्सो यूज टू कट एंड शेव वुड विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ कारपेंट्री। सो द नेम ऑफ द टूल इज polished
स्टोन सेल्ट्स, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल था इस टाइम का. कॉपर एंड लेटर ब्रोंज, एन alloy of copper and tin began to be used for making tools, weapons and utensils. Much later, iron was discovered and the age came to be known as the Iron Age. अब धीरे धीरे कॉपर और जो ब्रॉन्ज है उसका यूज होने लगा और फिर आयरन की भी डिस्कवरी हो गई, तो इस एज को नाम दिया गया आयरन एज. It marked the beginning of many early civilization in different river valleys of the world. और इस टाइम पर अलग अलग रिवर के आसपास बहुत सारी civilizations जो हैं वो फ्लोरिश होने लगी थी. ओके, here is a classroom activity. What you have to do, आपको कुछ information collect करनी है at least of 3 generations of your family on your mother and father side. So आपको एक family tree बनाना है अपने parents, grandparents और great grandparents का. उनके name आपको find out करने हैं, वो क्या करते थे and where they were born. Also write the sources from where you got this information. तो इस तरीके से देखोगे कि आप भी क्या कर रहे हो, history की study कर रहे हो. Fine. So, quick recap of the chapter. The concept of timeline helps us understand the sequence of historical events at different times. There are different ways of measuring time: years, decades, centuries, and millenniums. Sources of history are many. They help us reconstruct and interpret historical events. And we looked into the lives of early humans and how human societies grew more complex in time. So बच्चे, this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.